everyone. So as of now, Satyam sir with us. तो जो कि हमारे इस टेक्रित पॉडकास्ट टेक्निकल पॉडकास्ट शो के गेस्ट हैं एंड एज यू कैन सी फ्रॉम अ थंबनेल की सत्यम सर इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट या कह लो मांग कंपनीज की कल्चर एंड इन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं सत्यम सर से. तो सर आई वुड फर्स्ट लाइक टू वेलकम यू ऑन अ टेक्रित शो, टेक विद पॉडकास्ट शो. एंड नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमें ताकि हम वहां से अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर सकें. Sure. Thank you so much, Omkrit, first of all, for inviting me. So, my name is Satyam. मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट की थी फ्रॉम द सी एस. आई एम फ्रॉम द सी एस बैकग्राउंड. And yeah, I'm right now working in the Edge browser team in Microsoft. Nice. Really nice, sir. So, sir, we as of now, अगर एक general technical student की बात करें ना, the student because everywhere there are around 18 lakh students are there every year passing out from India itself. अभी तक बात Hmm. करें तो बहुत सारे जो टॉप एजेस के कॉलेज हैं तो माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग इन देयर कंपनी एंड रिक्रूटिंग. सो दे नो द प्रोसेस बिकॉज दे हैव एलुमनाई नेटवर्क, दे हैव मल्टीपल रिसोर्सेज एज वेल टू गेट टू नो अबाउट. बट जो टेक्रित की टारगेट ऑडियंस है एंड जो टेक्रित के मेंबर्स हैं मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ वर्किंग Hmm. प्रोफेशनल्स भी. तो वी Hmm. हैव टू नो अबाउट की पूरा प्रोसेस हम एक समझना चाहते हैं इन चीज़ों बेसिकली मांग कंपनीज की कल्चर एंड रिक्रूटमेंट इन चीज़ों के बारे में कि इफ समवन वांट टू स्विच और समवन वांट्स टू जॉइन एज एन इंटर्न सो व्हाट द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट दे हैव टू फॉलो. तो कन्वर्सेशन थोड़ी इसी लाइन में जाने वाली है. तो बिफोर गोइंग टू दैट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन यू टू आप अपनी करियर जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे सर कि आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएट हाउ यू गॉट इनटू द माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज द जर्नी दैट इन बिटवीन. Sure. So I have graduated from Guru Nanak Dev University. It is not an IIT, not an NIT, not BITS. Okay. So I would like to start from there. Mhm. Um, and the first company that came to my campus was KPMG. It comes under Big Four. So it Yes. is mostly audit compliance thing. So I got placed there. So there were total like 1100 students, out of which they picked 11. तो वो जो they picked the 11 students and they were distributed randomly to teams. तो उसके बाद like I was lucky enough that I got a team where Mhm. my work was mostly around doing writing code daily. तो Mhm. कुछ लोग थे जो रिस्क कंसल्टिंग में थे, कुछ लोग थे जो डेटा कंसल्टिंग में थे. देयर वर लाइक डिफरेंट टीम्स. पर मेरा जो Okay. काम था मोस्टली that was around data privacy software. So I worked there for 2.2 years. I did my intern there. I didn't do my intern in Microsoft. Um, Okay. and yeah, and then I joined a startup, and Microsoft is actually my third company. So I am a lateral hire. So yeah, this was kind of my journey in brief. Mhm. Yeah. Okay, perfect, sir. Perfect. So I got it. So first, like you have interned in the KPMG company. So and after that you joined a startup, and after that in a Microsoft. So this is the journey. What I would like to focus upon to know more about it, which is from the startup to Microsoft. Because ये journey जो होती है ना to अगर तो आप already get into the internship in a Mang company या फिर top 100 companies, so it is easy to switch because you are on the same work culture. But for going Yeah. into the startup and then switching over the Microsoft is a really big thing. So इस बीच की जो journey है, we just want to know more about it कि what planning you did and how you got hired. Like it was directly you have applied or what was the process of it. So can you please elaborate Okay. about this, sir? Sure. Actually, like after interning in KPMG, I also worked there for 2 years. So it was like Mm-hmm. from KPMG to a startup to Microsoft. But I Mm-hmm. would like to tell you my experience overall. So Okay. it actually started in KPMG. Actually, I was working on some technical things. Mm-hmm. And then I was like, I mostly spend my time in learning new things. So how other technologies work. I understood how blockchains work, how the basics of Nice. machine learning I did. So I learned a Mm-hmm. lot of things there. uh,
after that, I get into a startup because the reality is, so I had a 3 month notice period. तो वो एक बहुत ही बड़ा issue है, Correct. because a lot of companies are like they want Mm, people immediately or mm, in 1 or 2 months. That's the max. But I had a notice period of 3 months. So correct. I got into a startup um, Mhm, because they agreed कि हाँ ठीक है कि we are fine with 3 month notice period. So mm, people switch in between, right? They even get an offer. right. तो वो Mm, बाकी companies के offers लेते हैं and then they pick the best one, which is I guess the right thing to do mm, as well. uh, but from the company perspective, तो mhm, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि shall we wait for like 3 months for this candidate or not. तो I was lucky enough that I got few offers at that time. तो मैंने उसमें से एक स्टार्टअप पिक किया विच वॉज टोटली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि केपीएमजी बहुत अलग है, स्टार्टअप बहुत अलग है. एंड आई वर्कड इन द right. स्टार्टअप फॉर 11 months. एंड आफ्टर Mhm. दोज 11 months मेरे को मैंने करियर पोर्टल पे अप्लाई किया था. सो अच्छा, आई डेंट गेट एनी Microsoft पे. रेफरल. यस, Mhm, और उसमें भी ऐसे था कि आई यूज टू लाइक कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन जो mhm. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon इन सब में काम करते हैं, बट आई नेवर आस्क्ड देम फॉर अ रेफरल. I just Okay. connected with them to see के Mm, what they are doing or if they are sharing anything. तो okay. Nice. मैंने एक्चुअली करियर पोर्टल पे ही अप्लाई किया था. एंड देन Mhm. रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी ऑन लिंक्डइन. तो फिर हमने लिंक्डइन पे Okay. थोड़ी सी डिस्कशन करी एंड देन आई स्टिल रिमेंबर, आई गेस इट वाज वेंसडे एंड I don't remember the date correctly, but I guess it was like Wednesday in like March 2022. um, 22nd March 2022, I guess, yeah. Mhm. So उन्होंने मेरे को रीच आउट जब किया था तो उन्होंने बोला कि here is the test link, you can go through this thing. So there was a Mhm. screening round before. Okay. और उसमें 2 क्वेश्चंस थे which I had to complete in 1 hour. Okay. That was like purely DSA. Mhm. And मैं यहाँ पे थोड़ी सी और मिथ तोड़ना चाहूंगा. आई हैव ओनली डन आई गेस 60-70 क्वेश्चंस एट दैट टाइम डीएसए के. मैंने उससे ज्यादा नहीं करे थे. Nice. In total I have done 200, but that is over a like course of very long time. It was Mhm. not कि हाँ मैं हर टाइम डीएसए कर रहा हूँ. Right. But I did 60-70 questions. I practiced that, and Mhm. I did my online round. I was able to clear that. तो वेंसडे को रिक्रूटर से बात हुई. संडे को Mhm. उन्होंने लिंक, संडे को मैंने टेस्ट दे दिया. Mhm. सो इन बिटवीन 3-4 days I did 60-70 questions. एंड आफ्टर दैट थर्स वेंसडे को, नेक्स्ट वेंसडे को मेरे सारे इंटरव्यू राउंड्स एक ही दिन में स्केड्यूल हो गए. Oh, सो आई जस्ट गॉट 1 week इन mhm. बिटवीन. For preparation. So Yes. huge So, roller and I coaster. applied. Yeah. It was completely a roller coaster. तो मैंने SD2 की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था. सो आई हैड टू लाइक Mhm. गेट DSA, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, एंड देयर Mhm. वाज देन अ कल्चरल फिट राउंड. तो मतलब दिस वाज काइंड ऑफ द जर्नी आई प्रिपेयर्ड इन द 3 days. Mhm. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जब आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो एंड देन यू हैव Right. टू स्टडी, देन यू हैव टू डू द ऑफिस वर्क एज वेल, and you have to Mhm. revise things. Actually you cannot Mhm. do, like you cannot learn a lot of the new things at that time, but you have to revise whatever you have done till now. So that's Correct. what I actually did. And Nice. then the interviews happened and then I got into Microsoft. Okay, so but, really, I but can say a great journey की मतलब 7 days for preparation and I know about a Mang companies कि उसमें ना rounds भी बहुत सारे होते हैं, है ना? तो I yeah, can you do you want to just break down those rounds जो आपका एक ही दिन में schedule हुआ था? So we got to know sure. about multiple things. Yeah, please. हाँ, तो देयर वर टोटल 4 राउंड्स जो मतलब एक Mm-hmm. ही दिन में होने थे. दे वर Okay. ऑल लाइक विद द 30 minute गैप. कि जैसे मेरा Mm-hmm. पहला राउंड था वो डीएसए का ही था. Okay. आफ्टर दैट द सेकेंड राउंड वॉज काइंड ऑफ लो लेवल डिजाइन. Mm-hmm. So it was actually a great question, and then they asked me to code it as well. It should, तो उन्होंने पूछा था कि ये रन होना चाहिए सिस्टम पे. तो आई देन कोडेड इट दैट क्वेश्चन. So uske baad there was a high level design round, because as I said I applied for SD2, um, Mm-hmm. though I got SD1 and then I got अच्छा. promoted later like while working, but I Okay. applied for SD2 at that time. Mm-hmm. After that like third round was high level design.
and the fourth round was cultural fit. There they asked Okay. again, they asked like two questions, two coding questions in the Mhm. cultural round as well. So Okay. it was like that. um, yeah. एंड एक और छोटा सा क्वेश्चन है सर, तो लेट्स कमिंग टू द स्क्रीनिंग राउंड। तो स्क्रीनिंग राउंड में जो क्वेश्चन थे वो उनका लेवल क्या था? बिकॉज आई आई व्हाट आई फील कि जो कंपनीज के फर्स्ट राउंड होते हैं ना, स्क्रीनिंग राउंड, जिसमें कि वो 90% लोगों को इमीडिएटली जज करके एलिमिनेट कर देते हैं, तो दैट क्वेश्चन लेवल हम्म। विल बी वेरी हार्डर। सो वी आई जस्ट वांट टू नो अबाउट कि उन क्वेश्चन का लेवल क्या था जो आपको स्क्रीनिंग राउंड में मिले थे? तो अगर मतलब अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बोलूं तो आई गेस देवर हाँ हाँ। लीड कोड के मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे वो दोनों ही। लीड कोड एंड के मीडियम लेवल क्वेश्चंस। या एंड एक्चुअली लाइक आई जस्ट स्टार्ट एट दैट टाइम, मैंने 2 से 3 कंपटीशन दिए थे लीड कोड के, जो बाई वीकली या वीकली कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो या तो बेसिकली लाइक आई गॉट टू नो कि मतलब जल्दी करना इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक उसको उसके सारे टेस्ट केसेस पास भी होने चाहिए और आपको जल्दी भी टाइप करना है, सो यू हैव टू थिंक क्विकली। तो पर या इफ आई कंपेयर इट टू लाइक लीड कोड, बिकॉज वो ही सबसे ज्यादा आई गेस यूज करते हैं लोग यूज आजकल। होता है तो डेफिनेटली, हाँ। yeah, so it's like the medium, like both of the questions were like medium level lead code questions. ओके। एंड जो आपके इंटरव्यू मेन राउंड में क्वेश्चन आए थे, जो उनका लेवल क्या था? उनका भी मीडियम या ज्यादा? So the first round they asked 2 questions, एक easy था, वो थोड़ा ओके। जल्दी हो गया था finish, that I was like able to code in like 10-15 minutes. um, तो including the introduction part, तो a lot of people miss that thing. आपके पास अगर 45 मिनट्स का अगर एक इंटरव्यू है, आपका इंट्रोडक्शन में 5 मिनट अगर जाने वाले हैं, तो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो मैंने अपनी एक वॉच सामने रखी हुई थी वेयर आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली चेकिंग के वेयर आई नीड टू स्टॉप एक्चुअली। तो राइट। दैट थिंग वाज इन माय माइंड कि हाँ यहाँ पे रुकना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ इजी वन, सेकंड वन वाज अ मीडियम वन। आई वाज एबल टू कोड दैट अप, बट आई गेस उसका एक टेस्ट केस वाज मिसिंग एंड द टाइम गॉट ओवर। सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द काइंड ऑफ द फर्स्ट राउंड। और जो लास्ट राउंड में मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से एक इजी था और एक मीडियम था, बट दे डिडंट आस्क मी टू कोड दोस क्वेश्चंस, दे जस्ट आस्क मी टू टेल द लॉजिक, लाइक इफ इन केस सूडो कोड कह अगर हमें सकते वो हैं। सॉल्व करना है। हाँ, हाँ। सूडो कोड कह सकते हैं, बट वो भी मुझे कहीं पे टाइप नहीं करना था। आई जस्ट हैड टू लाइक टेल देम अबाउट द सोल्यूशन वर्बली। इट वाज मोर डिफिकल्ट एक्चुअली, आई नेवर प्रैक्टिस दैट। राइट। फॉर कोडिंग मतलब तो आप सोच के लॉजिक बना के थोड़ा कोड ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो, बट फॉर टेलिंग डायरेक्टली द प्लान्स वो तो कभी कभी इशू हो सकता है। या राइट। या राइट, टोटली एग्री कि इट वाज रियली, बट लाइक इट्स अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू एज वेल कि आपने एक दिन में, आई गेस कि ये बहुत रेयर है अभी तक मैंने जितना भी सुना है। सो दे गॉट स्केड्यूल्ड वन 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 राउंड ऑन अ 1 वीक गैप ऑलमोस्ट, कि एक एक वीक में हम्म। मिलता है एक एक चीज की, बट यू क्लियर्ड ऑन अ 1 डे, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। एंड या कुछ और भी चीजें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सो जस्ट लाइक फर्स्ट फ्रॉम द जर्नी, यू सेड कि यू हैव अप्लाइड एंड योर रिज्यूम गॉट शॉर्टलिस्टेड, राइट? तो एक यस रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग वाला भी जो स्टेज होता है ना, दैट इज रियली क्रिटिकल एंड इट इज अ प्रॉब्लमेटिक, लाइक इट इज ब्लॉकर, यू कैन से दैट फॉर मोस्ट ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू स्विच। यस सबकी कंप्लेंट्स रहती कि भाई मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे कोई रिक्रूटर का कुछ भी नहीं आता है, मुझे रिजेक्शन तक की मेल नहीं आती है। या तो ट्रू। तो एक रिज्यूम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा सर कि हाउ यू हैव क्रिएटेड योर रिज्यूमे, like what exactly you have या put it intentionally and how you have modified it to make it a grade to get selected in a man. So please explain about that. यस तो एक्चुअली मेरे रिज्यूमे की खुद की एक जर्नी है। तो Okay. द फर्स्ट वन दैट आई क्रिएटेड वो मैंने बीटेक के थर्ड ईयर में, आई गेस सेकेंड ईयर में बनाया था। इट वाज 3 पेजेस लॉन्ग। तो it had everything that I have done in life, like including the achievements I had in school and stuff like that, right? मेरे को हॉबी में Correct. क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, like I wrote everything and I luckily got an internship on that as well, during my college Nice. days.
but I won't recommend like creating such large CVs. I read it somewhere that even if you have, let's say, up to 10 years of experience, you should be able to put it down in a single page. राइट। ठीक है, बट वो सिंगल पेज में लिखना क्या है, राइट? क्या ऑर्डरिंग है उसकी, और कैसे करना है। सो मैंने एक सीवी बनाया था फिर एक टेम्पलेट को यूज करके, और वो टेम्पलेट यूज करके मैंने अपनी जस्ट बेसिक डिटेल्स डाली उसमें, एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग रैंडमली। ठीक है, जब मेरे को आफ्टर केपीएमजी आई जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग रैंडमली। तो उससे ऐसा हुआ कि आई डिड सम काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस देयर। तो मैंने लेट से 70 to 80 कंपनीज में अपना सीवी भेजा था उस टाइम पे, जस्ट रैंडमली। आई वाज जस्ट सेंडिंग इट आउट, इजी अप्लाई लिंक्डइन का ऑप्शन यूज करके आई वाज जस्ट सेंडिंग इट आउट। सो उससे प्रॉब्लम ये हुई कि आई रियलाइज आई जस्ट गॉट फाइव कॉल बैक्स आउट ऑफ 80। तो उसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि बिकॉज कोई जॉब थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कोई जॉब थी फ्रंट एंड इंजीनियर की, कोई जॉब थी बैक एंड इंजीनियर की, कोई जॉब थी पाइथन इंजीनियर की। आई अप्लाइड एवरीवेयर विद द सेम सीवी। दैट वाज अ बिग मिस्टेक बिकॉज आई वाज लाइक कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग कॉल्स। एंड उसका एक्चुअल रीजन ये था कि मेरा सीवी जेनेरिक था। अब मैं अगर एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट लिख के एक पाइथन इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, देन आई डोंट थिंक आई एम डूइंग जस्टिस देयर। तो सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे ही होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई लाइक आई देन स्टार्टेड क्रिएटिंग वर्जन्स ऑफ माय सीवी. Like if I will apply for a software engineering role, then these are the things then I should mention, because I had few projects. I had few things for 2-3 job roles कि बैकएंड के लिए ये बता सकता हूँ, फ्रंट एंड के लिए ये बता सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ये बता सकता हूँ. So I created 3 different versions then. And then I again applied to I guess 20 to 30 companies, but I got 6 calls. Now out of 80 companies who gave me 5 callbacks, अब 30 में से 6 callbacks थे. Now the percentage improved. Yes. Then I later realized I can even make it better. But उसमें बहुत टाइम जाता है, और मोस्टली लोग नहीं करते हैं कि कोई भी अगर आप एक स्पेसिफिक जॉब रोल किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का टारगेट करते हो, तो टारगेटेड अप्रोच इज ऑलवेज बेटर देन जस्ट डूइंग थिंग्स रैंडमली, विच आई ऑल्सो डिड. तो अगर आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि यू आर अ गुड फिट एंड यू कैन क्रैक इट, तो आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही अपना सीवी क्रिएट करो. लेट्स से अगर आपने कभी बैकएंड इंजीनियरिंग पे काम किया है, यू हैव क्रिएटेड एपीआईज, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में एपीआईज मेंशन्ड है, टेल अबाउट दैट थिंग. बिकॉज जो मेरा स्टार्टअप था, राइट, हाउ आई गॉट टू नो लाइक द मोर डिटेल्स अबाउट इट. जिस स्टार्टअप में मैंने काम किया था, इट्स नेम इज फिनॉम पीपल. तो उनका खुद का दे डू दिस सीवी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर अदर कंपनीज. So they deal with like different ATS. ATS is applicant tracking system. तो उसका क्या रोल होता है कि कोई भी जॉब आती है तो every applicant goes through different stages. तो मैं अगर बैकएंड की स्टोरी थोड़ी सी बताऊं, जब भी आप कहीं पे अपना सीवी अपलोड करते हो तो एक स्कोर दी जाती है एक पर्टिकुलर जॉब के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड देन द टॉप वंस आर पिक्ड. इट्स नॉट लाइक एक एचआर बैठा है और वो पूरा पूरा सब कुछ पढ़ रहा है, बिकॉज फॉर अ सिंगल जॉब thousands of people apply. So it's like that. तो टॉप वाले पिक होते हैं, एंड देन so I created job specific CVs, and then I started applying. तो then again I started getting more calls. तो 10 में से भी मतलब I was getting 3 callbacks now just because of that. So that's how I learned. Great. एंड जैसा कि आपने बताया ना कि देयर इज सम स्कोर, है ना, तो मुझे लगता है कि Yeah. स्कोर बढ़ाने के लिए, एंड द मिथ दैट यू हैव ब्रेकन अबाउट द प्रोजेक्ट्स एज वेल, कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्रोजेक्ट उठा के डाल दोगे एंड सेलेक्ट हो जाओगे. द योर Yes. प्रोजेक्ट शुड अलाइन विद द जॉब रोल एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट द कंपनी हैड, और दे हैव द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑन अ सेम डेजिग्नेशन, राइट. मतलब Yes. ऐसा है, और ऐसा भी नहीं कि आपने बस 2 प्रोजेक्ट बनाए हो गया, नहीं. अगर तो पाइथन के बनाए हैं तो ट्राई टू मेक 2 फ्रॉम बैक एंड एज वेल, 2 फ्रॉम फ्रंट एंड एज वेल, कि अगर आपको इन चीजों में भी स्विच करना हो, सो यू हैव मेंशन्ड दैट, राइट. तो ये Yes. मुझे आपके आपके इस रिज्यूमे जर्नी से मुझे ये वाली चीज काफी अच्छी लगी
कि हाँ मतलब अगर आप स्विच करने की सोच रहे हो कि हाँ अभी मैं कहीं और किसी और डेजिग्नेशन पे हूँ, सिस्टम इंजीनियरिंग में हूँ एंड आई वांट टू स्विच एट एसडी, तो एसडी के प्रोजेक्ट्स करो एंड मेंशन देम इन रिज्यूमे, राइट? यस। तो एसडी इज अ ब्रॉडर ग्रेट। टर्म एक्चुअली। अगर आप फ्रंट एंड हम्म। इंजीनियर के लिए जा रहे हो तो इट यू कैन जस्ट शो एवरीथिंग विच इज यू हैव डन इन द फ्रंट एंड। तो राइट। डेफिनेटली आई वुड से कि मतलब एस डी इज अ ब्रॉडर थिंग विच यू कैन यूज, कि फ्रंट एंड भी है बैक एंड भी है। बट राइट। लेट्स से फॉर फुल स्टैक, अगर आप सिर्फ बैक एंड मेंशन कर रहे हो तो फुल स्टैक निकालना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। करेक्ट। तो थोड़ी और चीजें हैं सर जिन पे मतलब हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो एक तो ये है कि आई हैव जस्ट नोटेड डाउन ऑल द थिंग्स, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में पूछता रहता हूँ कि व्हाट इज द जनरल क्वेश्चन दैट यू हैव, दैट द कंफ्यूजन यू हैव, सो फ्रॉम देयर आई एम पिकिंग माय पॉइंट्स, ताकि हम ना बिल्कुल एग्जैक्ट हम्म। पिन पॉइंट उस क्वेश्चन को करके सॉर्ट आउट कर सकें। तो उसमें से थोड़ी से क्वेश्चंस, सबसे पहला जो है ना वो थोड़ा सा स्किल एंड एजुकेशन पे आता है कि अगर हम स्पेसिफिक बात करें एसडी की, तो टेक स्टैक जो हमारा है वो बहुत ब्रॉड है, जस्ट लाइक उसमें गिट भी है, मतलब डिपेंड्स ऑन द वर्क कल्चर कि क्या आपको वर्क मिलता है ना। तो उसके टेक हम्म। स्टैक फिक्स होते हैं, बट एज एन एसडी अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे थे कि ये एक ब्रॉडर टर्म है, सो व्हाट आर द टेक स्टैक दैट यू शुड कवर व्हाइल बीइंग इन योर कॉलेज डेज, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको कौन सी ऐसे स्किल्स बहुत टॉप लेवल के बिल्ड करनी चाहिए जिसके थ्रू आप इजिली क्रैक कर सको ऐसी कंट्रीज? So basically, there are actually two things I would like to talk about. पहली वाली चीज में भी सबको इतनी पसंद ना आए, बट इट्स लाइक के डीएसए इज द थिंग विच यू शुड डू, जिससे आपको एक्चुअली आप कंपनीज क्रैक कर पाओगे एज अ फ्रेशर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम द कंपनीज परस्पेक्टिव दे डोंट नो कि किसका प्रोजेक्ट ओरिजिनल है, किसका प्रोजेक्ट ओरिजिनल नहीं है, राइट। right? अग्री। Same people do a Udemy course and or some course, let's say, and then everyone has the same project. From the company standpoint, हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट का वही प्रोजेक्ट है। अग्री So सर। if you think from that perspective, DSA is a like a must to do, because that's how companies shortlist freshers. ठीक है, अगर आप स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए जा रहे हो, देन आपके प्रोजेक्ट्स आपने कौन सी लैंग्वेज में करा है, देन द टेक स्टैक मैटर्स। लेट्स से अगर मेरी पूरी की पूरी कंपनी एंगुलर बेस्ड है या फिर अगर पूरी कंपनी रिएक्ट बेस्ड है, तो आई विल नॉट गो फॉर व्यू जेएस, और आई वुड नॉट गो फॉर सम अदर फ्रेमवर्क्स, राइट? तो सिमिलरली आई वुड से देर इज नो राइट और रॉन्ग हेयर। तो ऐसा नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज के कोई भी राइट और रॉन्ग चीज नहीं है, आपको एक लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना है। ठीक है, कि आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। सो दैट इज द मेन थिंग। अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करो, पर कैसे इंप्रूव करें, राइट? अगेन दिस गोज बैक टू आइदर डू लाइक आइदर प्रैक्टिस some DSA questions, get a better understanding of the CS fundamentals, so that you know which thing will not work where. राइट। ठीक है, एंड देन थर्ड थिंग इज कि आप प्रोजेक्ट्स करो। तो इससे आपका एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर लेट से आप जावा कर रहे हो तो आपको सिर्फ वही करते रहना है। यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग एज अ स्टूडेंट, बट मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि अब मैंने जैसे अपने करियर में क्या किया था, इन द फर्स्ट ईयर आई जस्ट डिड सी। फर्स्ट ईयर के एंड पे आई डिड पीएचपी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरे को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों करना है, और पीएचपी वाज एक्चुअली बीइंग यूज्ड। आई एम टॉकिंग इन लाइक 2016। हाँ, ठीक है, उस टाइम पे रिएक्ट वाज नॉट दैट पीएचपी का पॉपुलर। मार्केट था भी। यस, रिएक्ट पीएचपी एंड का नोड मार्केट। वाज नॉट दैट पॉपुलर एट दैट टाइम। फिर मैंने अपने सेकंड ईयर में पाइथन की, थर्ड ईयर में जावा की। ठीक है, एंड फोर्थ ईयर में अगेन आई डिड एमएल। तो मैंने एमएल पे 2-3 साल तक स्टडी की है, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन सी प्लस प्लस। क्योंकि लैंग्वेज के बेसिक सीखना विल नॉट हेल्प यू, डूइंग एंड सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स विल हेल्प यू मोर। तो उससे बहुत हेल्प होगी। तो कोशिश करो कि स्टिक टू समथिंग एंड देन डू एज मच एज यू कैन। एंड स्टूडेंट जब तक आप हो तो थोड़ा थोड़ा बाकी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो वट टू पिक। लेट्स से अगर आपको अगर मैं बात करूं तो एक
एल्गोरिदम्स होते हैं, राइट? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। राइट? आई वुड से कि स्टूडेंट्स के लिए पहले ब्रेथ फर्स्ट जाना इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे नो व्हाट दे एक्चुअली लाइक। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपना करियर स्विच करते हैं, जो बहुत देर तक फ्रंट एंड इंजीनियर थे, बट उनको बाद में लगा जैसे बैक एंड इज मोर इंटरेस्टिंग, या जो बहुत देर तक डेटा एनालिसिस करते थे उनको लग रहा है डेटा साइंस इज मोर इंटरेस्टिंग। तो एज अ स्टूडेंट ग्रास्प डिफरेंट थिंग्स के हर एक चीज में है क्या एक्चुअली, एंड देन पिक वन और टू। डोंट डू मेनी थिंग्स, डू लेस राइट। बट डू देम इन अ गुड वे। बहुत ही सटीक आपने जवाब दिया अगर कहें तो, मतलब इसके बारे में। एक और चीज मुझे इस कन्वर्सेशन से मतलब पूछनी है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि जैसा आपने कहा कि एक लैंग्वेज पकड़ो और उसमें बहुत डीप डाइव जाओ, राइट? सो करंट टाइम पे क्या है कि व्हेन समवन लर्न ऑन अ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जैसे ही वो पाइथन सीख लेते हैं, so they are really comfortable in a Python and they do not go for C++ and again, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मैं डॉट शॉर्ट लिख के शॉर्टिंग कर सकता हूँ, तो why I should write a selection short and bubble short, insertion short, या और भी जो अच्छे क्विक शॉर्ट के तरीके हैं, तो why I should go over there? तो क्या ये जो कंपनीज है, मांग कंपनीज हैं, इनमें स्क्रीनिंग राउंड में या फिर बाकी राउंड्स में कोड पाइथन में लिखा जा सकता है? इज इट एन ऑप्शन, और इज इट ओनली स्टिक टू, नहीं आपको सी प्लस प्लस या जावा में ही लिखना है जहां यू शुड राइट फ्रॉम कोड? तो इसके बारे में थोड़ा सो सा। ओके, अगर मैं पाइथन स्पेसिफिक बात करूं, डेफिनेटली यू कैन राइट योर कोड इन पाइथन एज वेल। देर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, ठीक है? नाउ आई विल टेल यू लाइक वेयर इट बिकम्स ट्रिकी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे, एज यू मेंशन राइट, कि वो डॉट सॉर्ट यूज करके या सॉर्टेड फंक्शन यूज करके दे जस्ट यूज शॉर्टकट्स, बिकॉज देयर आर सो मेनी लाइब्रेरी फंक्शंस दैट पीपल कैन यूज डायरेक्टली। राइट। तो राइट। नाउ द इंटरव्यू इज ऑल्सो स्मार्ट। तो इंटरव्यूअर क्या कहेगा कि आपने ये जो सॉर्टेड फंक्शन लिखा है, राइट इट ऑन योर ओन, यू कैन यूज पाइथन। या बट। नाउ यू शुड बी अवेयर कि जो आपने शॉर्टकट लगाया था उसका बैकएंड या वो बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा है। सो देर इज लाइक डिफरेंट थिंग्स, राइट? आपने शॉर्टकट तो यूज कर लिया, बट आपको पता नहीं है वो शॉर्टकट बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, देन थिंग्स विल फायर बैक ऑन टू यू। तो अगर आपको पाइथन करना है, डेफिनेटली करो, बट शॉर्टकट्स या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करने से पहले उनकी एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन भी जानो कि मतलब वो कैसे लिखे गए हैं, बिकॉज एज एन इंजीनियर यू आर सपोज टू लर्न ऑल ऑफ दिस। कल को कहीं पे यू रियलाइज कि अच्छा यहाँ पे मेमोरी लीक हो रही है, अच्छा यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ पे मोर मेमोरीज बीइंग यूटिलाइज्ड, पैकेज का साइज इंक्रीज हो रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड देन यू थिंक ये क्यों है, यू विल बी एबल टू गेट दोज आंसर्स क्विकली। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि डीप डाइव अगर आप कर रहे हो, आपने पिक किया है कि यार मैं इस लैंग्वेज में करूंगा या करूंगी, तो यूज दैट अकॉर्डिंगली एंड get a deep understanding of that thing. Correct. Correct. Got it. So, what I the crux point that I got from here is you can use a Python. That's not a barrier, right? But the thing is, whatever you should write, you have to know the backend. कि उसके backend पे भी from the basics of codes, जैसे है कि loop है, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो इनके थ्रू वो कैसे चीज काम कर रही है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर लिखने को हो गया तो हर जगह आपको प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगे, राइट? Yes, yes, definitely. Okay. Okay. So now, apart from the a little technical side, apart from this technical, we just want to know, there is a one more question that we have. What is the work culture in a Microsoft? Just like what is the difference? ऐसा कौन सा डिफरेंशिएटर है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अ बिग फोर, अ स्टार्टअप एंड लाइक मांग एमएनसी, ठीक है? तो आपको Hmm. एग्जैक्ट डिफरेंस इन तीनों के कल्चर में पता होगा। why Microsoft person grow more, uh, मतलब more quickly apart from the other, अगर वो एक अदर कंपनी में जॉब करे या माइक्रोसॉफ्ट में, डेफिनेटली देयर विल सम डिफरेंस देयर, है ना? तो ये ऐसा क्या इनके कल्चर में है जो इनको डिफरेंट बनाता है? Okay. So I will again break some myths here. ठीक है? Okay. And people might not like it. So so
ऐसा नहीं है कि आप कहीं और कुछ नहीं सीख सकते हो. देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर. ठीक है. बट आई विल टेल यू वट हाउ इट बिकम्स डिफरेंट. लाइक मेरे केस में मैं उसको कंपेयर करके ये नहीं बोलूंगा इट इज वेरी गुड. मैं उसको ऐसे देखता हूं कि आई लर्न डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस. तो जैसे केपीएमजी का कल्चर वाज वेरी डिफरेंट देन अ स्टार्टअप्स कल्चर. ठीक है. करेक्ट, अब बिल्कुल. केपीएमजी में देयर द टेक्निकल टीम वाज स्मॉल एट दैट टाइम एंड दे वर एक्सपेंडिंग. हम्म, तो आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच व्हिच अगेन हेल्प्ड मी इन द स्टार्टअप थिंग. क्योंकि राइट. स्टार्टअप में भी आपको बहुत सारे टेक्निकल डिसीजंस खुद से लेने हैं. माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर इज लाइक रियली गुड बिकॉज द यूजर बेस इज ह्यूज. तो आपको एक बहुत ही वाइड सेट ऑफ यूजर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती हैं विच मेक्स यू थिंक ब्रॉडली. क्योंकि राइट. ऐसा नहीं है अगर कुछ कोड लिख रहा हूं दैट शुड बी एन एक्सेसिबल यूजर शुड बी एबल टू यूज दैट कोड. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करूंगा. देयर आर वेरी स्मॉल नीटी-ग्रिटीज बट जिसके कारण आप स्केल कर सकते हो अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को. तो कल्चरली आई वुड से कि बिकॉज ऑफ द बिग यूजर बेस जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत यूनिक होती हैं. अ, वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि जब आप सॉल्व करते हो तो आपको एक तो मजा भी आता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है बिकॉज योर इम्पैक्ट इज बिग. तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड देन दैट्स हाउ द कल्चर इंप्रूव्स. बट अ कल्चर, अगर मैं सिर्फ कल्चर की बात करूं, कल्चर इज मोर अबाउट द पीपल देन द कंपनी. सो बहुत बार ऐसे होगा कि आप एक बहुत ही लेट्स से आई डोंट नो लाइक मेनी कंपनीज लाइक दैट बट लेट्स से अगर किसी कंपनी का इन जनरल कल्चर खराब है बट देयर कुड बी टीम्स जिनका कल्चर बहुत अच्छा है उसी कंपनी के अंदर. इट्स अप टू यू एज वेल कि आप कैसे रखते हो, कैसे रहते हो, राइट आप कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हो. तो सो यस. बट माइक्रोसॉफ्ट में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो दे आर वेरी सपोर्टिव. इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो देन यू कैनॉट आस्क. दे आर इवन इम्पैक्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन कि आपने कितना दूसरों से हेल्प लिया. सो मतलब ये दैट जो, थिंग इज प्लीज प्लीज कंटिन्यू यस. सर. तो मतलब इस चीज को हम प्रमोट करते हैं कि इफ यू डोंट नो देन आस्क. मतलब डोंट हेजिटेट. तो थोड़ा सा ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया मुझे चीज लगी क्योंकि इसने मेरी लर्निंग में भी बहुत हेल्प की है. मतलब ये तो इट्स रियली गुड टू सी कि जैसे मतलब हर कंपनी में आपको एक मतलब क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ती है कि व्हाट यू एक्चुअली डिड इन दिस क्वार्टर, इन दिस 4 months, और इन दिस हाफ फिजिकल ईयर. तो मतलब आप ये बता रहे हो कि दे दीज आर थिंग्स आर आल्सो कैलकुलेटेड इन दोस क्वार्टर वर्किंग, राइट? कि हाउ मच पीपल यू हेल्प्ड एंड यस. हाउ मच हेल्प यू गॉट. यस. अमेजिंग. मतलब मुझे लगता है कि व्हाट आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द कंपनी डू नॉट फॉलो दिस, है ना? और हम्म. एंड द सेकंड थिंग दैट यू हैव मेंशन्ड कि हाँ, यूजर बेस इज वेरी बिग. तो द प्रॉब्लम दैट केम दैट कैन आल्सो बी वेरी डिफरेंट. तो इसीलिए ये सब मल्टीपल रीजन है जो कि डिफरेंशिएटर है एक तरीके से बाकी अदर कंपनीज का इन कंपनीज के साथ, राइट? या डेफिनेटली. सो दैट्स रियली ग्रेट टू नो ऑल दिस पॉइंट्स. मतलब ये बहुत ही मुझे लगता है रेयर पॉइंट्स हैं जो कि हमने मतलब कहीं और भी देखा होगा. तो कमिंग टुवर्ड्स अगेन टुवर्ड्स टेक्निकल, जो हम एक पार्ट्स पार्ट्स में कर रहे हैं डिस्कशन. तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर अ प्रोजेक्ट्स. क्योंकि हम्म. प्रोजेक्ट्स ना बड़ा एक वो है, मतलब काफी इम्पैक्टफुल. कुछ लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स इज रियली बिग इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपके इंटरव्यू की पूरी डिस्कशन आपके प्रोजेक्ट पे ही चली जाती है. एंड कुछ लोग कहते हैं कि जो भी हो आप एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे कि AI ML, तो इट विल बी मोर हम्म. इम्पैक्टफुल. सो व्हाट इज योर व्यूज ओवर द प्रोजेक्ट थिंग कि प्रोजेक्ट अगर कोई कर रहा है तो उसको किस स्ट्रैटेजी से करना चाहिए और कैसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? ओके, आई विल गिव अ वेरी बेसिक एग्जांपल फॉर दिस थिंग. हम्म. लेट्स से अगर किसी की कपड़ों की दुकान है, ठीक है, एंड दे सेल क्लोथ्स. राइट. अब अगर
और उनको कपड़े बेचने हैं, राइट? एंड हाँ। दे आर सेइंग कि यार मैंने ऑफलाइन कर लिया, मुझे ऑनलाइन कुछ करना है अपने बिजनेस को, हम्म। क्या चीज हेल्प करेगी? ठीक अब है, वेबसाइट में। तो मे बी अ वेबसाइट, अ मोबाइल हम्म। एप्लीकेशन, और मे बी जस्ट लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट और सम अदर ई राइट। कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मुझे मैं अगर बात करूंगा तो आपको एक इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग ही चीजों को देखना चाहिए, राइट? तो हम्म। फॉर एग्जाम्पल, सो बेसिकली अगर मान लो एक कपड़े वाले के लिए, या जो बेसिकली एक शॉपकीपर है, उसके लिए उसके हम्म। प्रोडक्ट्स को सेल करना इज द बेसिक मेट्रिक जो वो देखना चाहता है, राइट? कि राइट। कितने कपड़े बेच पा रहा हूं मैं, क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं ऑनलाइन करने से, और ऑनलाइन में भी कहाँ कहाँ पे, राइट? सो आई वुड से कि प्रोजेक्ट्स शुड बी पिक्ड अकॉर्डिंगली, कि लेट से आप कितने, क्या उसका इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। तो वो प्रोजेक्ट बहुत ही बेसिक था, बट इट हेल्प्ड सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो ओके। प्रोजेक्ट ये था कि जैसे हमें हर साल अपनी डेटशीट निकालनी पड़ती है, हर हर सेमेस्टर डेटशीट निकालनी पड़ती है हमारे एग्जाम से पहले। कभी हमें फीस पोर्टल ढूंढना पड़ता है जब हमें फीस डिपॉजिट करनी है। देन वी गो टू द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। ठीक है, कभी हमें कभी अपना कुछ सब्जेक्ट्स पिक करने होते हैं, या प्रोस्पेक्टस चाहिए होता है, राइट? बिना यूनिवर्सिटी में एंटर किए, जब एक स्टूडेंट देख रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेज पिक करना है, सो अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर द प्रोस्पेक्टस के क्या ऑफर कर रहा है। I राइट। created a chatbot where you can ask your questions in NLP, basically using NLP। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप बस बेसिकली ये लिख सकते हो उसमें कि डेट शीट सेंड कर दो। इट स्क्रेप्स द वेबसाइट एंड सेंड्स यू द डेट शीट लिंक इमीडिएटली, सो दैट आपका बहुत टाइम बचा। बिल्कुल। ठीक है, फिर। सो नाउ दिस प्रोजेक्ट डिडंट हैव एनी इम्पैक्ट आउटसाइड माय कॉलेज, बिकॉज मैंने सिर्फ एक कॉलेज के लिए कुछ कुछ चीजें यूज करके एक चैटबॉट क्रिएट किया था। ठीक है, बट उसकी यूजफुलनेस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि राइट। अब नाउ द ऑडियंस सेट इज लिमिटेड, बट इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ, मतलब जो हैं वो बहुत अच्छे से हैं। तो राइट। इवन अगर आप रिसेंटली देखोगे, राइट, यू टॉक्ड अबाउट AI ML, तो रिसेंटली मैंने एक सैम ऑल्टमैन का एक इंटरव्यू देखा था। ही ऑल्सो मेंशन द सेम थिंग, दैट वी टुक a market segment and then we just did the best things that we can do for those people। तो आपको, या तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो जो कि हर कोई बना रहा है जस्ट टू लर्न द टेक्नोलॉजी, पर आपको प्रोजेक्ट में मजा तब आएगा जब उसे यूज करेंगे लोग एक्चुअल में। तो जब लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे तब आपको मजा आएगा। तो अगर आपका प्रोजेक्ट उसी अकॉर्डिंग है कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, या आप खुद की हेल्प कर पा रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कर पा रहे हो, डू इट। गॉट इट, गॉट इट सर। इट्स रियली मतलब ग्रेट कि आपको प्रोजेक्ट इस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि आई जस्ट हैव टू लर्न। मतलब एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट इज अ गुड थिंग, भले ही वो उतनी ज्यादा टेक्निकल चीजों से फैसिलिटेटेड और फीचर्स से फैसिलिटेटेड ना हो, लेकिन इट्स यूज यस, केसेस शुड बी लार्ज, है ना? उससे आपको बहुत सही पता चलेगा। सो as of now we have done the discussion over the project thing, है ना? प्रोजेक्ट जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसा आपने बहुत डिटेल में और बहुत प्रिसाइज मैनर में बताया कि देखो प्रोजेक्ट बनाना इज नॉट एन फॉर्मेलिटी कि हाँ टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। थिंक फ्रॉम अ यूजर केस, है ना? तो दैट इज यस। रियली डिफरेंशिएटर पॉइंट। मैंने भी कभी मतलब हमेशा आता था माइंड में कि प्रोजेक्ट should be like this, should be like on this technology, on this, but yeah, you have made it very clear for everyone. तो अब थोड़ी सी डिस्कशन को लास्ट टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन में लेके जाते हैं, इन ऑर्डर टू आस्क फ्यू थिंग्स। ओके, इन ऑर्डर टू आस्क कि अगर या इन ऑर्डर टू आस्क कि अगर अभी करंटली कोई थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, तो आप उनको अभी के टाइम पे डीएससी के लिए क्या सजेस्ट करोगे? एनी प्लेटफॉर्म या फिर एनी, क्योंकि एज वी हैड अ डिस्कशन ओवर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड दैट कैन ओनली बी डेवलप वाया सॉल्विंग द डीएसए क्वेश्चंस। तो आई जस्ट हैव दिस, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है बोथ द थिंग्स, मतलब कोर्स में भी स्किल हम्म। डेवलपमेंट के लिए एंड कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए भी? कैसे उनको इस चीज की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और इस पे काम करनी चाहिए?
सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने जैसे बोला कि डीएसए इज वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, राइट। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसे नहीं दिया जाता कि हर बार के ये एरे है इसमें से यूनिक एलिमेंट निकालो, इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज, राइट? सो देयर करेक्ट। विल बी अ स्टोरी बिहाइंड इट के, राइट, कि देयर इज सम पर्सन है वो ये कर रहा है, एक्स वाई जी थिंग्स आर हैपनिंग, सो एंड यू हैव टू लाइक गेट टू दैट थिंग कि हाउ विल यू कोड दैट अप। तो एंड अदर देन दैट आई गेस द प्लेटफॉर्म में देयर आर टू आई फील विच आर गुड, जो मैंने पर्सनली यूज किए हैं, वो है इंटरव्यू बिट और एक है लीड कोड। एंड आई ओके। डोंट थिंक के आई हैव सीन पीपल लाइक हॉपिंग अ लॉट के दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने एक प्लेटफॉर्म पे इजी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आप दूसरे प्लेटफॉर्म के इजी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। Stick to that करेक्ट। same platform and do the medium or hard level questions of that platform. So that will help a lot actually. Um, so just whatever platform you choose, some people even do it on Geeks or Geeks. Some people do some XYZ use XYZ platforms. I would say कि stick to one. Don't करेक्ट। jump too much. मतलब So that will प्लेटफॉर्म कुड बी, सॉरी टू इंटरप्ट बट जस्ट अ yeah. क्वेश्चन कि प्लेटफॉर्म कुड बी एनी, राइट? इट इज नॉट कि हाँ इंडस्ट्री में जस्ट लाइक लीड कोड इज ओनली द इम्पोर्टेंट। इफ यू आर कंफर्टेबल ओवर गीक फॉर गीक्स इवन, just increase your level of solving, right? Increase your level of solving, level Yeah. of competitiveness, basically what we can say that, right? Correct. Yes. That's that's great. And what is the good? Just like in the same question, I had put it about the courses as well. So, अगर कोई course करता है from a Udemy, from a Coursera, is it also creating some impact in the resume or not? Uh, I never felt like that created any impact. That can Okay. create impact in your own knowledge, Mm-hmm. which I feel is the biggest impact they can have. अगर आप अच्छे से करते हो कोई भी कोर्स को, या लेट्स से अगर एंड कोर्सेज, सो लेट्स Mm-hmm. अंडरस्टैंड व्हाई दे आर देयर एक्चुअली, लाइक कोर्सेज हैं ही क्यों। तो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन एक्चुअली, राइट, Correct. कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पे ढूंढना ना पड़े। पीपल डू कोर्सेज ऑन Mm-hmm. प्लेटफॉर्म्स। मैंने कभी पैसे पे नहीं किए हैं मतलब कोर्सेज वगैरह के लिए, दो यूडेमी Nice. पे आई हैव बॉट 2-3 कोर्सेज बट Mm-hmm. नेवर completed any. सो इट्स That. लाइक कि हाँ अच्छा लग रहा है ले लेते हैं, बट नेवर यूज्ड इट लेटर ऑन। Got it. सो ये इट्स लाइक दैट, मतलब अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए करो। आइदर यू हम्म, कैन गो विद द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूंगा आपको गो लैंग्वेज सीखनी है, और या राइट। फिर आपको नोट जीएस के बारे में पढ़ना है, या तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। बट हम्म, पीपल दीज डेज दे हैव लाइक दे आर लाइक मतलब कोई करवा दे इज बेटर। So they can राइट। listen, they can, some people like feel like reading is boring actually, is what I meant. हम्म, And for some people it is good. So people either हम्म, follow documentation or follow these courses because they are in a structured format. तो राइट। बाकी सीवी में वो कितनी वैल्यू ऐड करते हैं एज अ फ्रेशर, डेफिनेटली यू नीड टू पुट समथिंग, राइट? हम्म, क्योंकि अगर आप एक एमएल इंजीनियर के लिए जा रहे हो और आपके कोर्स वर्क में बीटेक के एमएल का नाम ही नहीं है कहीं पे भी, राइट। so you need to show your कि yes you are you can do this, right, and you हम्म, are interested in this, so to show your interest there it can help। कि अगर आप ऐसी नाइस। डोमेन में जा रहे हो जिसका आपने अपने कोर्स में कुछ किया ही नहीं है, देयर दीज कोर्सेज हेल्प बिकॉज दे ऐड हम्म, सम एक्स्ट्रा वैल्यू देयर। बट करेक्ट। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, या मतलब कुछ जो ब्रॉडर टर्म्स हैं, एज आई सेड, राइट, हम्म, यू आर नॉट हम्म, गोइंग फॉर एनी स्पेशलिस्ट रोल, हम्म, तो देन आई थिंक द वैल्यू इज अ लिटिल लेस। okay. So basically, what I have got the crux is it is important, but it depends on a multiple situation, है ना? कि अगर या तो you are going for ऐसा role जिसकी आपके related coursework नहीं है, तो that can help that and add some value कि हाँ यहाँ से मैंने करी है and I got certified. Just and या certification or courses is it not for sake of completion कि भाई मैंने ये complete करा है, it adds value. That course should add value in your skill enhancement, right? From this या perspective आपको courses को देखना चाहिए, चाहे वो Udemy हो चाहे Coursera। यस Great, great. I just got about this. And एक और चीज मुझे पूछनी थी, some people create a portfolio website,
मतलब ये तो हम्म आपने भी देखा होगा, आई डोंट नो आपने भी क्रिएट किया या नहीं, बट आई जस्ट वांट टू नो कि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने से क्या कोई इम्पैक्ट आता है, मतलब आपके रिज्यूमे या होल प्रोफाइल में, या तो इट इज जस्ट एन एडिशनल थिंग कि अगर आपने किया है तो सही है, नहीं किया है तो इट्स फाइन, लाइक दैट? आई फील लाइक इट हैज एन इम्पैक्ट। ओके। लेट्स से, हाँ, मतलब उसका इम्पैक्ट कैसे है? एज आई सेड राइट, समटाइम्स रीडिंग बिकम्स बोरिंग फॉर फ्यू पीपल। अब राइट। आपने सीवी में बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट डाल रखा है, ठीक है? हम्म। द रिक्रूटर और द मे बी द इंटरव्यूअर माइट नॉट इवन लाइक रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट अगर हम्म। आपका पोर्टफोलियो बहुत ही सुंदर है, जिसमें आपके बुलेट पॉइंट्स हैं या चीजें हैं जो विजुअली अपीलिंग हैं, राइट, हम्म। एंड इट बिकम्स easier for them to understand you better. तो अगर आप करेक्ट। कर रहे हो तो इट्स इट्स अ गुड पॉइंट। प्लस यू विल एंड अप लर्निंग समथिंग, यू विल एंड अप लर्निंग के हाउ टू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, लाइक मे बी अ सिंगल पेज एप्लीकेशन और अ मल्टी पेज एप्लीकेशन, or how to host those things, how to get a domain for that. You will end up learning a lot of things. So from the learning perspective also it is good कि आपको वेब की बेसिक चीजों के बारे में भी पता लग रहा है, और आपको होस्टिंग एंड देन डीएनएस और ये सब कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो आप लर्न भी कर रहे हो, प्लस आप यू आर मेकिंग श्योर दैट वेयर योर सीवी इज नॉट रीचेबल, और इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द अटेंशन ऑफ समबडी फ्रॉम योर सीवी, देन योर पोर्टफोलियो कैन हेल्प. And people add it to their LinkedIn profile, and I feel it's great because it shows as a different link, and you can click on it, हाँ। and then you can करेक्ट। go there and look at it. करेक्ट। A करेक्ट। lot of करेक्ट। people are not comfortable in sharing their CV with broadly, but हम्म। portfolios are being shared broadly के मतलब public चीजें हैं वो तो हम्म। yeah, या it has multiple benefits. the reason why is कि resume is containing some personal informations as well, like contacts Yes, वगैरह, तो that is the yes, reason why मुझे लगता है कि portfolio website is not मतलब in terms में जो आपने बताया कि हाँ मतलब portfolio website broadly share करने में comfortable वाला reason, that I think yeah. that is not that great. So it's a really great experience, and I think we have out of the box learning that we got and break a lot of myths. So I think I'm at a last on a very conclusive point. So I just want you to any last suggestion for all of the technical market, मतलब जो लोग भी देखते हैं, क्योंकि as I told you कि TechCrit की जो community है, in this community we Hmm. have working professionals as well, and we have student from tier 2 tier 3 colleges as well. So उनके लिए अगर आप लास्ट कोई चीज बता सको for building their career perspective, then it will be really great. Hmm. So yeah, actually I would like to share few things. पहला तो ये है कि लाइक क्लियरिंग मैंग इज नॉट एवरीथिंग, राइट? यू कैन गो वेयर Correct. एवर यू लाइक, योर लर्निंग शुड नॉट स्टॉप. Okay, Mm. and second thing is it is not that hard, like the people are showing ke, hey, they have like done something amazing. I feel like it is the part of the process, and if you spend some times if you spend some time on something, you will eventually become good at it. Now let's say if it is cracking interview and you spend some time on it, you will become good at it. It's just that कि आप कितने focus के साथ कर पा रहे हो वो चीज को. Um, Correct. मतलब मेरे पास भी मतलब उतनी सब गाइडेंस नहीं थी, आई फील. बट आई Right. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं था या पहले मैं अगर मैंग कंपनी में नहीं था तो आई वाज नॉट लर्निंग. आई वाज लर्निंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर एज वेल. सो बिल्कुल। आपको ये नहीं सोचना है कि वो सब कुछ है, और आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप कहीं और सीख नहीं सकते हो. आप डेफिनेटली सीख सकते हो, बट जैसे मैंने बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व करोगे बाद में, अगर आप कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या टेक्निकल कंपनी क्रैक करते हो, तो द प्रोडक्ट सो दैट ऑडियंस विल चेंज. आपके जो कलीग्स हैं वो चेंज होंगे. Mm. आई एम नॉट फ्रॉम आई आई टी, बट मेरे अभी मोस्टली कलीग्स दे आर आई आई टी एंस. सो Right. आई सी अ डिफरेंस देयर, कि मतलब दे डोंट थिंक अबाउट द अदर थिंग्स के यार मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. दे थिंक अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स एक्चुअली, एंड इट्स Mm. रियली गुड. सो डोंट जस्ट क्लियर इट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग इट, बट क्लियर इट इफ यू फील लाइक रियली डूइंग इट. और दूसरा ये कि मतलब वो बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट दैट 3 मंथ्स, आई वुड से 2 to 3 months ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट, इससे ज्यादा नहीं है. तो इफ यू आर Right. थिंकिंग कि यार बहुत ही ज्यादा मेहनत है,
नहीं हो पाएगा, 3 months 6 months, like people can do it. Um, and anyone can do it. So don't feel like के बहुत मुश्किल है और हम तो मतलब tier 2 tier 3 से हैं तो चांस नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. Opportunities are there. Make yourself visible, so that people can reach out to you if you can't reach out to them. ओके, सो ये बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ है जो मैंने फॉलो करी है. इसके अलावा मतलब आई आई वुड शेयर माई लिंक्डइन हैंडल वेयर एवर दिस इज बीइंग शेयर्ड, Sure, sure, मे बी ऑन sure. यूट्यूब और ऑन, या Yeah, yeah. सो मे I बी will लाइक, share. I will share. Definitely in या a यू कैन, description below. I'll attach. या सो एनीवन कैन कनेक्ट विद मी. मतलब Hmm. किसी को कुछ डाउट्स हो, कुछ हो, लाइक आई वुड लाइक टू आंसर या हेल्प देम आउट इवन इन लर्निंग इफ आई कैन. तो Great. बस अपनी स्किल्स पे फोकस करो. एवरीवन से दैट, but I would say actually go and do something rather than just listening or watching things. Actually do practice, and be good at what you do, whatever you do. Right. So Right. that's the last advice I would like to give. Yeah, because what just क्या आपने बताया ना कि just listening is not everything. मतलब आप कितनी भी tutorials पढ़ लो, कितना भी है ना playlist पे Yes, playlist खत्म कर लो, unless until you will sit and you will do some hands on, that is actually impactful. That वही आपको करना है ना, and true. that creating an impact. तो Yeah, दे डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी में अब से सारे यही करेंगे. एंड या दिस वीडियो गॉट शेयर्ड ऑन यूट्यूब, सो दैट आई विल पुट Satyam sir LinkedIn handle as well below in the description, and please I suggest you all to please go and send a connection request. But एक और चीज है, मैंने देखा है जो भी मांग कंपनीज में होते हैं ना, पीपल विल डायरेक्टली रीच आउट एंड एड नोट में आ रहा है हेलो हाय. ही इज नॉट हियर फॉर yeah, चिट चैट्स, राइट? Find your purpose and then write that in a note and then send you the connection request. Okay, this is just a yeah, suggestion for all. Okay, so and I would like to thank sir for joining me on this podcast show. So it's a really great yeah, experience. मतलब multiple things तो मैंने भी जानी है about a company and current technical market. So I just got a lot of things, and I truly believe whosoever will watch this video till the last, they will get a lot different things, because we mostly talk about our differentiators that already have in the market, but what is there in actuality. So yeah, I think we unlocked multiple things. So thank you so much again, sir, and thanks for joining over the tech trip. yeah. Thank you so much, Omkrit. I hope I was able to guide, I will be able to guide somebody whoever will watch this video. And you can just call me Definitely. Satyam, like I have not, like I guess, earned that mark of a sir yet. So yeah, But for us, you that's are. another thing. Okay. Yeah, Okay. Thank you so yeah, much, sir. I think we can conclude yeah, this. Thank you so much. sure.